بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ اس بدکردار لڑکی کو میں 1 منٹ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ چچی نے ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک زوردار دھکا دیا تھا۔ میں بری طرح دروازے سے ٹکرائی تھی۔ پھر انہوں نے کھینچ کر مجھے باہر نکال دیا۔ اس کالی اندھیری رات میں گھر سے باہر کھڑی زاروں قطار رو رو کر چچی سے فریاد کر رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ خدا کے لیے چچی، میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ لیکن وہ تو گویا میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی دہلیز کے دروازے میرے لیے بند کر دیے تھے۔ میں 2 گھنٹے تک سخت سردی میں بنا کسی گرم کپڑوں کے وہیں دروازے پر بیٹھی رہی، لیکن انہوں نے دروازے نہ کھولے۔ پھر میں نے اپنے ارد گرد دوپٹے کو اچھی طرح لپیٹا اور کسی جائے پناہ کی تلاش میں پیدل آگے جانے لگی۔ رات کے اس پہر بھلا کس نے میرے لیے اپنے دروازے کھولنے تھے؟ اسی لیے میں دور سڑک پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک ہی تھوڑی دور مجھے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ میں گھبرا گئی کہ کہیں وہ کوئی لوفر نہ ہو۔ اکیلی کھڑی جوان لڑکی کو دیکھ کر کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی تھی، اسی لیے تیز تیز قدموں سے آگے ہی آگے جانے لگی۔ میں حیران رہ گئی جب وہ میرا پیچھا کرنے لگا۔ اب وہ میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ تبھی وہ گھوم کر میرے آگے آ کر میرا راستہ روک چکا تھا۔ اب میں دم بخود اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ مجھے جیسے پتھر کا کر گیا تھا۔ اس آدمی کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ اس نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے بھی اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ اس کا مہربان چہرہ دیکھ کر میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہی۔ میرا نام کومل ہے۔ میں 20 برس کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ میری خوبصورتی ہی میرے لیے مصیبت تھی، کیونکہ جو لڑکیاں یتیم ہوتی ہیں ان کی خوبصورتی ان کے لیے کسی پھٹکار سے کم نہیں ہوتی۔ جب میں پیدا ہوئی تو میری پیدائش کے وقت ہی میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ابو اور امی دونوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ یوں ابو کا پیار شادی کے صرف 1 سال بعد ہی ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو گیا۔ اس صدمے نے انہیں صرف 2 سال جینے دیا۔ اس کے بعد وہ بھی امی کے پاس چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی محبت ایسی تھی کہ ان کی محبت پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اب میں اپنی کنواری پھپھو کی گود میں پلنے لگی، لیکن صرف 4 سال کی ہی تھی کہ ان کی شادی ہو گئی۔ ان کے سسرال والے بھلا مجھے کہاں قبول کرتے، اسی لیے چار ناچار میری ذمہ داری میرے چچا نے اٹھا لی۔ چچی تو پہلے ہی مجھے منحوس کہتی تھی۔ جب کہ میں ان کے گھر آ گئی تو پھر انہوں نے مجھے منحوس کے ساتھ ساتھ عذاب بھی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ میں ان پر کسی عذاب کی طرح نازل ہوئی تھی۔ وہ میری شکل سے ہی نفرت کرتی تھی۔ جب بھی میرے چچا گھر میں پھل لے کر آتے تو وہ اس پھل کو مجھ سے ایسے چھپایا کرتی جیسے میں نظروں سے ہی اسے کھا جاؤں گی۔ وہ اپنے بچوں کے کپڑے، جوتے، ہر چیز بنایا کرتی، لیکن میرے نصیب میں ہمیشہ اترن ہی آتی اور میں اس پر بھی شاکر رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں اپنے نصیب پر سمجھوتا کرنا سیکھ چکی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یتیموں کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ میں نے زندگی میں ایک بھی دوست نہیں بنائی تھی، لیکن میری پھپھو کبھی کبھار مجھ سے ملنے آ جاتی تو وہ میری ہمت بناتی اور کہتی، دیکھنا ابھی تمہارا نصیب ایسا ہے، لیکن تمہاری شادی جس سے بھی ہوگی وہ بہت خوش نصیب ہوگا اور تم شادی کے بعد بہت خوش رہو گی۔ ان کی ایسی ہی جھوٹی تسلیاں مجھے واپس زندگی کی طرف کھینچ لاتی۔ میری چچی کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام ارم تھا، دوسری کا نام کرن۔ دونوں ہی ذرا سانولے رنگت کی قبول صورت لڑکیاں تھیں۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں بے حد حسین تھی۔ میرے آگے کھڑی میری دونوں کزنیں اپنی رنگت کی وجہ سے دب جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں آنے والی عورتیں میری چچی کو کہتی کہ تمہاری بھتیجی کس قدر خوبصورت ہے، لگتا ہے اس کی ماں بہت خوبصورت ہوگی۔ میری چچی یہ باتیں سن کر جل بھون جاتی، پھر ان کا غصہ میرے اوپر نکلتا تھا۔ پورے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ بہت چھوٹی سی عمر میں ہی میں نے کھانا بنانا اور روٹیاں پکانا سیکھ لی تھی۔ سب کی روٹیاں پکا پکا کر میری انگلیاں بھی ٹیڑھی میڑھی ہو گئی تھیں، لیکن پھر بھی چچی مجھ سے خوش نظر نہیں آتی۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی۔ اس دن ارم کے رشتے والے آئے تو چچی نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہنے لگی
कि जब तक मेहमान चले नहीं जाएं तुमने बाहर नहीं आना। यूँ रिश्ते वाले इरम को पसंद करके चले गए और झटपट मंगनी हो गई। जब भी इरम के ससुराल में से कोई आता तो चच्ची मुझे कमरे में बंद कर दिया करती। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था। इरम मुझसे 2 साल बड़ी थी। आखिर उसकी शादी हो जानी चाहिए थी। मैं खुश थी कि उसकी मंगनी हो गई थी। हो सकता है कि इरम की शादी के बाद चच्ची का रवैया भी मुझसे थोड़ा बदल जाए। एक दिन तीनों माँ बेटी बाहर बाजार गई थी कि अचानक ही दरवाजे पर कोई आया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर इरम का मंगेतर काशिफ खड़ा था। उसे देखकर मैं घबरा गई। पहली बार मैंने उसे देखा था, शायद उसने भी मुझे। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं उसे अंदर बुलाऊं या नहीं, क्योंकि घर पर कोई भी नहीं था। मैंने देखा काशिफ मुझे देखकर हैरान था। उसकी हैरानी की वजह मुझे समझ नहीं आई, लेकिन दूसरे दिन मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई जब काशिफ की अम्मी आई और उसने इरम के साथ रिश्ता करने से इनकार कर दिया। वो चच्ची को कह रही थी कि काशिफ ने तुम्हारी भतीजी को पसंद किया था, इसीलिए वो उसी से ही शादी करना चाहता है। तुम मेरे बेटे की मंगनी अपनी भतीजी के साथ कर दो। चच्ची का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने ना सिर्फ काशिफ की माँ को जलील करके निकाल दिया, बल्कि उनका गुस्सा मुझ पर ही निकलना था। फिर उन्होंने उस रात ही मुझे घर से निकालकर मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने इरम के मंगेतर को फांसने की कोशिश की है। चचा ने भी उनकी बातों का यकीन कर लिया था, क्योंकि इरम रो रो कर खुदकुशी की धमकियां दे रही थी। वो मेरा वजूद हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। फिर चची ने उसी रात मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं सड़क पर बेयारो मददगार खड़ी थी जब उस नौजवान का गुजर यहाँ से हुआ था। वो मेरे करीब खड़ा होकर मुझे कहने लगा कि आप मेरे साथ चले। सड़क पर खड़ा होना ठीक नहीं, लेकिन मुझे उसके साथ जाते हुए डर लग रहा था। मैं सोचने लगी कि कहीं ये कोई गलत इंसान ना हो, लेकिन अंधेरी और सर्द रात थी। मैं कितनी देर तक यहाँ खड़ी रह सकती थी। नाचार उस नौजवान के पीछे चल पड़ी, जो शक्ल से बिल्कुल भी आवारा नहीं लग रहा था। अब मैं उसके पीछे पीछे ही जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। थोड़ी ही देर के बाद वो मुझे एक पुराने कब्रिस्तान की तरफ ले आया था। मैं दहशत का शिकार थी। भला रात के इस पहर कब्रिस्तान में क्या काम हो सकता था। फिर उसने हाथ से एक तरफ इशारा किया और कहने लगा, वो देखो, वो मेरा घर है और मैं और मेरे बाबा हम उसी घर में रहते हैं। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतनी खौफनाक जगह नहीं देखी थी, लेकिन रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था। इसीलिए मजबूरन मैं उस लड़के के साथ आ गई। अब मैं उसके अजीब से घर में दाखिल हुई तो सामने हर तरफ धुआं सा फैला था। घर की दीवारें भी काली हो रही थी। ऐसे लगता है जैसे ना जाने यहाँ पर बरसों पहले बहुत शिद्दत की आग जलाई गई हो। मेरा घबराया हुआ चेहरा देखकर वो लड़का कहने लगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाबा एक गोरखन हैं, इसीलिए हम इसी कब्रिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तभी उसका बाप कमरे से निकल कर आया था। उसे देखकर मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। इंतहाई अजीब सी शक्ल, ऊपर से लंबे लंबे सफ़ेद बाल, कहीं से भी वो इंसान दिखाई नहीं देता था। उसके नाखून इतने लंबे थे कि शायद परसों से ना काटे हों। मैं दिल ही दिल में खुदा को याद करने लगी, ये मैं कहाँ गई थी। अब उस लड़के ने मेरे लिए बैठने की एक जगह बना दी थी। मैं वहीं पर एक कोने में सिमट कर बैठ गई। ऐसे लग रहा था कि आज खौफ से मेरा दिल बंद हो जाएगा। तभी वो लड़का एक ट्रे में खाना रख कर लाया था। उस खाने को देखकर मुझे अबकाइयाँ आने लगी थी, क्योंकि पूरा फेफड़ा पकाकर उस प्लेट में रखा गया था। जब मैंने खाने से इनकार किया तो वो लड़का कहने लगा, आज आप मजबूरी में यही खा लें। दरअसल बाबा को गोश्त खाने की आदत है। कल मैं आपके लिए बाहर से खाना ला दूंगा। लेकिन मुझसे तो उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था, इसलिए मैं चुपचाप बैठी रही। सख्त सर्दी और कब्रिस्तान में मौजूद ये अजीब सा घर, उस माहौल ने तो मिलकर मुझे नफसियाती बना दिया था। अजीबोगरीब सोचें मेरे जहन पर सवार होने लगी। उन्हीं सोचों को सोचते सोचते न जाने में कब नींद की वादी में चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख किसी के झंझोड़ने से खुली थी। वो एक बूढ़ी औरत थी जो मुझे हिला हिला कर कह रही थी कि कौन हो तुम और इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हो। मैंने अपने आप को देखा तो मैं एक दरख्त के नीचे बैठी टेक लगाए सो रही थी। मेरे सर में बेतहाशा दर्द था।
मैं पागलों की तरह इधर उधर देख रही थी। भला मैं इस कब्रिस्तान में कैसे आई थी? आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी जहनी हालत सही हुई तो मुझे याद आया कि यहाँ तो उसी गोरखन और उसके बेटे का घर था। फिर मैं उस आदमी से कहने लगी कि यहाँ पर जो आदमी रहता था वो कहाँ गया? तो वो हैरान होकर कहने लगी, कौन सा आदमी? यहाँ तो कोई घर नहीं। मैं तो फकीरनी हूँ जो सामने वाली भिखारियों की बस्ती में रहती हूँ। मैंने देखा वो फकीरनी बड़े गौर से मुझे देख रहे थे। फिर कहने लगी, इतनी खूबसूरत और यहाँ अकेली कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? अगर मेरी जगह कोई आवारा आदमी आकर तुम्हारी इज्जत लूट लेता है तो फिर तुम क्या कर लेती? चलो आओ मेरे साथ। अगर तुम्हारा कोई घर नहीं है तो मेरी झोंपड़ी में रह लेना, कम से कम वो महफूज तो होगी। मेरे पास वैसे भी कोई रहने का ठिकाना नहीं था, इसीलिए मैं फकीरनी के साथ चल पड़ी। लेकिन मेरा जहन उस बात को कबूल नहीं कर पा रहा था कि रात को मिलने वाला वो लड़का और उसका बाप मेरा ख्वाब था। मैंने तो अपनी आंखों से उस लड़के और उसके बाप को उसका कब्रिस्तान में मौजूद एक घर में देखा था। अब मैं उस फकीरनी की झोंपड़ी में आ गए थे। फिर वो कहने लगी, तुम मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। उसने प्लेट में गर्मा गर्म चावल रखे थे, शायद वो कहीं से मांग कर लाई थी। मुझे भी बहुत शिद्दत की भूख लग रही थी, इसीलिए मैं बेताबी से वो चावल खाने लगी। फिर उस फकीरनी ने मुझसे पूछा कि तुम घर से भाग कर आई हो? तो मैंने उसे पूरी कहानी बता दी कि किस तरह से मुझे घर से बिना किसी कसूर के निकाल दिया गया था। वो मुझे दिलासा देकर कहने लगी, ये दुनिया ऐसी ही जालिम होती है। मुझे देख लो, मैं शादीशुदा 4 बच्चों की माँ थी, लेकिन मेरे शोहर का दिल किसी दूसरी औरत पर आ गया। उसने ना सिर्फ मुझे तलाक दी बल्कि मुझसे मेरे 4 बच्चे भी छीन लिए। माँ बाप ने घर पर ना रखा तो मैं सड़क पर निकलकर भीख मांगने लगी। अब दिन रात अपने बच्चों की याद में रोती हूँ। उस औरत की दुखी कहानी सुनकर तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मुझसे ज़्यादा दुखी तो वो फकीरनी थी। फिर वो मुझे कहने लगी कि तुम आराम से मेरी झोंपड़ी में रहो, मेरी बेटी बनकर। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की बाहर सड़कों पर भीख मांगने के लिए निकले। अब मैं आराम से उसके साथ उसकी झोंपड़ी में रहने लगी। लेकिन एक दिन जब मैं अकेली वहाँ सो रही थी, अचानक ही उसी बस्ती का एक जवान फकीर मेरी झोंपड़ी में घुस गया। उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। अगर बर वक्त मेरी आंख ना खुलती तो शायद अब तक मैं बर्बाद हो चुकी होती। फिर उसी रात मैं वहाँ से भाग आई थी। भागते भागते थक हार कर कहीं जगह ना मिली तो मैं उसी कब्रिस्तान में आ गई जहाँ पर वो गोरखन और उसका बेटा मुझे मिले थे। मैं अभी दरख्त के पीछे छुपी बैठी थी कि अचानक मुझे दूर से आदमियों का रश नजर आया। वो कब्रिस्तान की तरफ ही आ रहे थे। शायद किसी की मैयत हो गई थी, वो उसे दफनाने के लिए आ रहे थे। अब मैं सब देखकर घबरा गई। किसी ने मुझे यहाँ देख तो लेना ही था। अब कब्रिस्तान के पीछे एक जंगल मौजूद था, आगे जाने का रास्ता भी नहीं था। नाचार मैं अकेली जंगल में चली गई। जंगल में दूर तक भटकती रही, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। मैं एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी। आखिर कब तक मैं अपनी इज्जत लोगों से यूं बचाती फिरूंगी? काश के चचा मुझे कबूल कर ले तो मैं वापस घर चली जाऊं। यही सोचकर मैं हिचकियों से रोने लगी। मैं घुटनों में मुंह छुपा कर रो रही थी। अचानक ही मेरे कानों में आवाज़ आई, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। मैंने उस आवाज़ पर सर उठाया तो हैरान रह गई। ये तो वही नौजवान था जिसे मैं अपना सपना समझ कर बैठी थी। यही तो उस दिन मुझे उस कब्रिस्तान में मौजूद उस घर में लेकर आया था। फिर मैं उससे कहने लगी कि नहीं, तुमने पहले भी मेरे साथ धोखा किया। मुझे एक झूठी दुनिया दिखाकर ना जाने कहाँ लेकर गए थे। इस कब्रिस्तान में तो कोई भी घर मौजूद नहीं। फिर उस रात तुम मुझे कहाँ लेकर गए थे? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया। फिर कहने लगा, बाबा को तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए उसने अपने समेत मुझे भी तुम्हारी नज़रों से गायब कर दिया था। मैं उससे कहने लगी, क्यों? क्या तुम भूत हो जो इस तरह गायब हो जाओगे? उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया था। फिर कहने लगा, हाँ, मैं एक जिन्नात हूँ और मेरे बाबा भी जिन्नात ही हैं। हम सालों से इस पुराने कब्रिस्तान में रहते आ रहे हैं। मुझे इंसानों की दुनिया देखना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बाबा को इंसानों से सख्त नफरत है, इसीलिए वो किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करते। मैं खौफ से कांप रहे थे। उसकी सफ़ेद आंखें बता रही थी कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर वो मुझे कहने लगा कि तुम्हारी दुनिया के इंसान बहुत जालिम है, तुम्हें अकेला देखकर नोच लेंगे, इसलिए तुम मेरे साथ चलो।
मेरे साथ रहोगी तो कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। उसकी बातें बिल्कुल सच थी। मैं जानती थी कि जिन्नात के पास बहुत सारी ताकतें होती हैं जिनकी वजह से वो हर मुश्किल काम का मुकाबला कर लेता है। मैं एक लावारिस घर से निकाली जाने वाली यतीम लड़की थी। मुझे किसी ऐसे ही मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। फिर मैं उस जिनजादे से कहने लगी, आओ हम दोनों मिलकर अपनी एक दुनिया बसाते हैं। मैं जानती हूँ यहाँ पर इंसानों की शक्ल में भेड़िए छुपे हैं जो मेरी इज्जत तार तार करने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगाएंगे। जिनजादा मेरी बात सुनकर खुश हुआ था। अब एक बार फिर से मैं इंसानों की दुनिया में जा रही थी, वो भी एक जिनजादे के साथ। पुरानी बस्ती में मौजूद हम एक घर में रहने लगे। सब हमें मियाँ बीवी कहते थे, लेकिन हमारे दरमियान सिर्फ अपनाइयत का रिश्ता था। मैं पूरा दिन घर में रुकती, वो जिनजादा मेरे लिए हर वो चीज़ लाता जिसकी मुझे ज़रूरत होती। अभी वहाँ रहते हुए चंद दिन ही हुए थे कि अचानक मोहल्ले की एक औरत मेरे पास आई। वो लड़का तुम्हारा शोहर है जो यहाँ तुम्हारे साथ रहता है? मैंने उससे कह दिया कि हाँ, वो मेरा शोहर है। फिर वो कहने लगी कि अच्छा, इतने दिन हो गए तुम लोगों को इस मोहल्ले में आए हुए, लेकिन ना तो वो किसी से मिलता है और ना ही किसी को आता जाता नजर आता है। वो सुबह सुबह कहाँ निकल जाता है। अब मेरी समझ में नहीं आई थी कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। मैंने उसे कह दिया कि वो यहाँ से बहुत दूर एक फैक्ट्री में काम करता है, इसीलिए उसे बहुत सुबह निकलना पड़ता है और रात गए तक वापस लौटता है। वो मेरी बात सुनकर कहने लगी कि अच्छा, मेरा शोहर भी कई महीनों से बेरोजगार है, अपने शोहर से कहो कि उसे भी फैक्ट्री में लगवा दे। अब तो मैं ये बताकर बुरी तरह पछता रही थी। फिर मैंने उससे कह दिया कि ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। अब वो औरत चली गई तो मैं बुरी तरह घबरा रही थी। मैं सोचने लगी कि कहीं लोगों को ये शक तो नहीं हो गया कि मैं एक जिनजादे के साथ इस घर में रह रही हूँ। फिर 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिला कर रख दिया था। जब मेरे बराबर वाले घर में एक मौलवी आकर रहने लगा। वो गरीब खानदान था। जब मैं उस गली से गुजरती तो वो अक्सर ही बड़े गौर से मुझे देखता। फिर एक दिन वो जिनजादा मेरे पास आया तो मैं उससे कहने लगी, लगता है लोग तुम्हें पहचान गए हैं, हम कहीं और जाकर रहते हैं। जिनजादा कहने लगा, अगर मैं इंसानों के दरमियान रहूँगा तो लोग ऐसे ही मुझे परेशान करते रहेंगे, इसलिए तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो, वहाँ पर सुकून होगा, ना ही किसी का खौफ। फिर मैं डरते डरते उससे कहने लगी कि क्या तुम्हारे जिन्नात मुझे इस दुनिया में कबूल कर लेंगे? वो जिनजादा गहरी सोच में डूब गया। फिर कहने लगा, हाँ, उनके लिए ये अजीब बात होगी कि मैं एक आदमजादी को अपने साथ अपनी दुनिया में ले आया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई खौफ नहीं क्योंकि इस कबीले का सरदार मेरा बाप है। फिर ठीक 2 दिन बाद मैंने और जिनजादे ने एक रात चुपके से वो घर छोड़ दिया। अब वो मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जा रहा था। वैसे भी मेरे साथ तो मेरा कोई अपना बचा नहीं था। अगर मैं किसी से मदद भी मांगती तो वो मुझे गलत निगाहों से ही देखता। लेकिन जिनजादा बहुत नेक और मेहरबान था। मैं उसके साथ खुश थी। जंगलों पहाड़ों से होते हुए ना जाने वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। फिर काफ़ी दूर तक पैदल चलने के बाद आखिरकार मुझे एक पुराना गेस्ट हाउस नज़र आया। मैं हैरान रह गई कि वो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है, क्योंकि यहाँ तो कोई भी नहीं था। जैसे ही मैं गेस्ट हाउस के अंदर गई तो हैरान रह गई। वो सदियों पुराना महसूस होता था, लेकिन इतना साफ सुथरा था, ऐसे लगता था जैसे उसमें कोई रह रहा हो। जलती रोशनियां एकदम से बुझ गए थे। पूरा गेस्ट हाउस अंधेरे में डूब गया था। तभी अंधेरे में एक खौफनाक आवाज़ आई, ये तुम किसको अपने साथ लेकर आए हो? जानते हो कि हमारे कबीले में इंसानों का दाखिला ममनू है? फिर वो जिनजादा कहने लगा कि बाबा, ये हमारी हकीकत से वाकिफ़ है, यह खुशी से मेरे साथ यहाँ आई है। इंसानी दुनिया वालों ने इसके साथ बहुत जुल्म किया है। तभी इस पूरे गेस्ट हाउस के चारों अतराफ धुआं फैल गया। मैं सूरत हाल देखकर घबरा गई। शायद उसके कबीले के जिन्नात उसे रखने के लिए तैयार नहीं थे। मैं खौफज़दा नज़रों से उस जिनजादे को देखने लगी। अचानक ही पूरे गेस्ट हाउस में रोशनियाँ जली और फिर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो मुझे दहशत ज़दा करने के लिए काफ़ी था। वहाँ एक नहीं सैकड़ों के हिसाब से जिन्नात मौजूद थे। वहाँ जिनजादियाँ भी थे, उनके बच्चे और लंबे चौड़े कद के जिनजादे भी। मैं बहुत सहमी हुई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैबतनाक थे। मैं सोचने लगी कि जिस जिनजादे ने मुझसे मोहब्बत की है वो तो खूबसूरत है, फिर ये इतनी खौफनाक शक्ल के क्यों हैं?
तभी एक लंबा चौड़ा और ढेर उम्र का जिनज़ादा चलता हुआ आया। वो जिनज़ादे के सामने आकर कहने लगा, ये तुमने इंसानों वाला हुलिया क्यों इख्तियार किया है? जानते हो मुझे इंसानों से कितनी नफरत है। उन्होंने कभी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, फिर भी तुम इस आदमजादी को लेकर हमारे कबीले में आ गए। वो जिनज़ादा धीमी सी आवाज़ में सरदार से कहने लगा कि यह लड़की बहुत मजबूर और लावारिस है, यह खुद भी इंसानों की सताई है, तो मेरे साथ मेरी दुनिया में आने पर तैयार हो गई है। फिर उस शहनशाह जिन्नात ने मुझे उस कबीले में रहने की इजाज़त दे दी। यहाँ का माहौल बहुत पुरस्रार था। रात होते ही पूरे गेस्ट हाउस में हलचल सी होती, सारे जिन्नात दिखाई देते, लेकिन जैसे ही दिन निकलता तो वो सारे गायब हो जाते। अकेले मैं ही उस गेस्ट हाउस में परेशान बैठे रहते। फिर एक दिन रात को मैं उस जिन्नात से कहने लगी कि आखिर ये जिन्नात तुम्हारी तरह इंसानों के रूप में क्यों नहीं रह सकते? मुझे उनकी शक्ल देखकर बहुत खौफ महसूस होता है। वो कहने लगा कि हमारे जिन्नात इंसानों से बहुत नफरत करते हैं, वो उनकी परछाई भी नहीं देखना चाहते। लेकिन मेरा बाप चूँकि इस कबीले का शहंशाह है, इसीलिए उसने तुम्हें मेरे साथ बर्दाश्त कर लिया है। मैं उससे ज़्यादा उससे कहने लगी कि आखिर इंसानों से नफरत की वजह क्या है? क्या इंसानों ने इनके साथ कुछ किया है? फिर वो कहने लगा कि आज से कई साल पहले हमारा पूरा कबीला इंसानों की बस्ती में रहता था। वो एक बहुत बड़ी हवेली थी जो कई सालों से बंद थी। यूं उस खाली हवेली को देखकर हम बड़े आराम से उसमें रहने लगे। हमें रहते कई साल गुजर गए थे, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता हमारा ख़ानदान बढ़ता गया। हमारे आसपास इंसानों के घर आबाद थे, उन्हें हमारी मौजूदगी का इल्म था, लेकिन हमने कभी भी उन्हें तंग नहीं किया और ना ही किसी के सामने मौजूदगी का एहसास दिलाया। अचानक उस हवेली को किसी इंसान ने ख़रीद लिया। अब वो रोज़ उसे देखने आता और किसी दूसरे आदमी के साथ सौदेबाजी करता। ये देखकर सारे जिन्नात बहुत परेशान रहते, क्योंकि उनका ठिकाना छिनने वाला था। अनकरीब इंसानों ने यहाँ आबाद हो जाना था। आस पड़ोस के रहने वाले उस आदमी से कहने लगे कि यह हवेली ना ख़रीदो, लेकिन वो कहने लगा कि ये मुझे बहुत पसंद आई है और हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है, इसीलिए मैंने इसे ख़रीद लिया है। उसने किसी की एक नहीं सुनी और उस हवेली की मरम्मत करवाने लगा जहाँ हम सुकून से रह रहे थे। अब हमारी सारी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई थी। ना दिन में सुकून होता और ना ही रात को। फिर किसी जिन्नात ने सरदार को मशवरा दिया कि इससे पहले कि ये लोग इस हवेली में आकर आबाद हों, हम भी इसलिए हवेली छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन सरदार कहने लगा, नहीं, यहाँ कई साल बीत गए हैं, अब इस हवेली को छोड़ना आसान नहीं है। हम तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, अगर कहीं दूर जाकर भी रहते हैं तो वैसे तो हमारा ठिकाना हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि यह आदमी ज़्यादा दिन यहाँ रह पाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक गलत फहमी साबित हुई जब दूसरे दिन आदमी अपने साथ एक बहुत बड़े आमिल को ले आया। बस उस आमिल ने आते ही हमारी मौजूदगी महसूस कर ली थी। फिर वो उस आदमी से कहने लगा कि इस हवेली में रहने वाले जिन्नात तादाद में कहीं ज़्यादा है, इन सबको इतनी आसानी से यहाँ से निकालना मुमकिन नहीं। तो वो शख्स कहने लगा कि आमिल साहब, मैं आपको माला माल कर दूँगा। आपको ज़िंदगी में जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, मैं वो हर चीज़ आपके कदमों में ला कर दूँगा, लेकिन हर कीमत पर मुझे ये हवेली किसी भी जिन्नात या चुड़ैल से पाक चाहिए। फिर आमिल कहने लगा, ठीक है, मैं कल से एक अमल शुरू करता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने दिन में ये जिन्नात हवेली छोड़ कर जाएंगे। वो आमिल बहुत चालाक मक्कार था। उसने एक बड़ी साजिश रची। अमल के ज़रिए धीरे धीरे करके उसने कबीले के सरदार से दोस्ती कर ली। वो आमिल सरदार से कहने लगा कि तुम भी इस हवेली में आराम से रहो और जो इंसान यहाँ कर आबाद होंगे उन्हें भी सुकून से रहने देना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। उसने सरदार को मुकम्मल यकीन दिलाया कि आने वाले इंसान तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। आमिल ने सरदार को कहा कि तुम हवेली का एक कमरा ले सकते हो, उसी में अपने ख़ानदान के साथ आबाद हो जाओ। जिन्नात ने इस बात पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी और उसी कमरे में उनका पूरा कबीला चला गया। अब पूरी हवेली खाली थी, लेकिन एक कमरे में जिन्नात बस गए थे। फिर उस आमिल ने वो किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उसने उस पूरे कमरे पर एक ख़ास अमल किया और अमल के ज़रिए जिन्नात को पूरी तरह बेबस कर दिया। अब वो कैद होकर रह गए थे। बाहर धुआं करके जिन्नात को अंधा करने की कोशिश की गई। वो यही चाह रहे थे कि किसी भी तरह करके जिन्नात इस पूरी हवेली को खाली करके चले जाएं।
अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था। या तो वो उस कमरे में कैद होकर रह जाते या फिर हवेली छोड़ कर जाते। उनकी ताकतें बेबस हो गई थी। सरदार ने सारे जिन्नात को कहा कि अब यहाँ रहना नहीं है, हमें कहीं और जाकर रहना पड़ेगा। फिर उसी रात वो हवेली सारे जिन्नात से खाली हो गई। लेकिन सरदार अब उस आमिल से नफरत करने लगा। ये नफरत इतनी बड़ी कि उसने आमिल से बदला लेने का सोचा और उसके पास मौजूद मोक्कल जिन्नात को आज़ाद कर दिया, जिससे उस आमिल ने बहुत सारे चिल्ले और अमल के ज़रिए अपना गुलाम बनाया था। हमारा पूरा कबीला नेक जिन्नात पर मुश्तमिल है, इसलिए हम किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते और ना ही किसी की जान लेते हैं। फिर काफ़ी साल तक यहीं जंगलों में हम भटकते रहे। आखिरकार उस जंगल में आकर ये गेस्ट हाउस ही हमारा ठिकाना बन गया, क्योंकि ये कई साल से खाली था। अब हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें अपने साथ सबकी नाराज़गी मोल लेकर यहाँ लेकर आया हूँ, इसलिए तुम भी एहतियात से इस गेस्ट हाउस में रहना। यहाँ से थोड़ी दूर एक इंसानों की बस्ती है। कभी भी इस गेस्ट हाउस से बाहर किसी दूसरी जगह ना जाना। उनकी अजीब कहानी सुनकर तो मैं खुद हैरान रह गई, लेकिन मैं क्या करती। उस पूरे गेस्ट हाउस में बहुत घुटन महसूस कर रही थी। पूरे जंगल में एक भी इंसान दिखाई ना देता। रात होते ही उस पूरे जंगल में जिन्नात घूमने लगते, लेकिन मैं कमरे में सिमट कर बैठी रहती, क्योंकि मुझे उनसे बहुत खौफ महसूस होता। सिवाय एक जिनजादे के मुझे यहाँ कोई भी अपना ना लगता, क्योंकि सभी मुझे नफरत भरी नज़रों से देखते थे। पूरा दिन जिन्नात सोते रहते, जबकि रात होते ही उनका दिन शुरू हो जाता। वो रात को रक्स करते, जश्न मनाते, लजीज पकवान तैयार करके खाते। गर्ज के उनकी ज़िंदगी तो बहुत ऐश से गुजर रही थी, लेकिन सवाए उस जिनजादे के मुझसे कोई बात नहीं करता, ना ही मैं उनकी किसी खुशियों में शरीक हुई थी। एक सुबह जब गेस्ट हाउस में मुकम्मल सन्नाटा छा गया तो मैं चुपके से यहाँ से निकली। यहाँ से थोड़ी दूर एक नीली झील के पास जाना चाहती थी। मैंने सुना था कि उस जंगल में थोड़ी ही आगे बहुत खूबसूरत झील है। मैं उसे देखना चाहती थी, यहाँ की खूबसूरती को महसूस करना चाहती थी। अब मैं पैदल ही पैदल चलती बहुत दूर आ गई। फिर मेरी आंखों ने वो मंजर देखा जिसने मुझे मसूर कर दिया था। सामने ही वो नीले पानी वाली झील थी जो दूर तक फैली हुई थी। फिर मैं एक पत्थर पर बैठी और उस झील के पानी में पाँव डालकर बहुत खुशी से उस मंजर को देखने लगी। फिर अचानक मैं हैरान रह गई। मेरे बिल्कुल सामने एक गोरी चिट्टी खूबसूरत मेरी ही हम उम्र लड़की खड़ी बड़े गौर से मुझे देख रही थी। वो लड़की शायद वहाँ पानी भरने आई थी, क्योंकि उसके हाथ में एक घड़ा था। फिर वो मेरे करीब आई और कहने लगी, लड़की तुम कौन हो? हमारे गांव की तो नहीं लगती, कहाँ से आई हो तुम? मैं उसकी बात पर घबरा गई थी। इतने दिन बाद किसी इंसान से मेरा सामना हुआ था। फिर मैं उससे कहने लगी कि मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने आई हूँ। फिर वो बड़ी हैरत से कहने लगी, अच्छा, लेकिन यहाँ तो किसी को भी घूमने फिरने की इजाज़त नहीं, क्योंकि सालों पहले इस जंगल में एक आदमी की मौत हो गई थी। जब से इस जंगल में कोई भी शख्स नहीं आता। मैं उसकी बात पर हैरान हो गई। वो जिनजात तो कह रहा था कि हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर वो आदमी कैसे मर गया था? उसकी बात सुनकर मैं कुछ घबरा गई थी। फिर वो मुझसे कहने लगा कि तुम भी इस जंगल की तरफ ना जाना, और अभी शाम होने वाली है, जाओ अपने घर चली जाओ। कहाँ है तुम्हारा घर? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि भागती हुई उस जंगल की तरफ आ गई। मेरा रुख गेस्ट हाउस की तरफ था। मुझे जिनजादे के झूठ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दिल है दिल में ये खौफ भी था कि कहीं वो जिन्नात उस जिनजादे की गैर मौजूदगी में भी मुझे उस आदमी की तरह मार कर जंगलों में न फेंक दे। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मैं बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी, जो ना जाने कहाँ चला गया था। फिर जैसे ही रात हुई, मैंने एक जिनजादी के मुँह से सुना, जब वो एक जिनजात से कह रही थी कि उसके आशिक को तो सरदार ने एक लंबे सफ़र पर भेज दिया है। अच्छा है ना, इन दोनों की ये मोहब्बत की कहानी देखकर तो मैं बहुत जल रही थी। अच्छा है ये यहाँ अकेली रहेगी तो बेचारी डर डर कर ही मर जाएगी। वो अजीब बेहंगम कहका लगा कर हंसी थी। मैं उसकी बात पर रोने लगी। दिल में सोचा कि जिनजादे ने मुझे बताया भी नहीं और खुद ही मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से चला गया। अब मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। जिन्नात ने मुझे अभी तक कबूल नहीं किया था, जब भी तो वहाँ कोई भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करता। फिर मैंने पक्का फैसला कर लिया कि कुछ भी हो, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अगर इन जिन्नात ने मुझे मार भी डाला तो उसे मेरी लाश मिलेगी। मैं तो बिल्कुल ही लावारिस हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से रात गुजारी थी।
फिर सुबह होते ही मैं चुपके से उस गेस्ट हाउस से निकली और जंगलों में भागती भागती दूर पहुंच गई। पथरीले रास्ते और भूख प्यास से निडाल होकर अब मैं उस बस्ती की तरफ जा रही थी जो यहाँ से थोड़ी दूर आबाद थी। जैसे ही मैं उस बस्ती के करीब पहुंची तो सारे ही रास्ते में मिलने वाले लोग मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैं सहमी हुई एक जगह खड़ी हो गई। अचानक ही मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो कल झील के पास मुझे मिले थे। उसने भी मुझे देख लिया था। फिर वो कहने लगी, तुम अभी तक भटक रही हो क्या तुम अपने ख़ानदान के पास नहीं गई? तो मैं उससे कहने लगी कि नहीं, मैं यहाँ का रास्ता भूल गई हूँ। फिर उसने मेरे ज़ख्मी पाँव और भूख प्यास से निढाल चेहरा देखा तो कहने लगी, अच्छा तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें पहले खाना देती हूँ और पहनने के लिए दूसरे कपड़े भी। वो बड़ी मेहरबान तबीयत की मालिक थी। अब वो मुझे अपने घर में ले गई। उसका घर तो बिल्कुल ही कच्चा सा बना था। गुर्बत उसके दरो दीवार से टपक रही थी। एक कमरे से किसी आदमी के खांसने की आवाज़ आ रही थी। मैं भी चुपचाप जाकर नीचे ज़मीन पर बैठ गई। फिर उसने खाना मेरे सामने लाकर रखा और अपना एक जोड़ा निकाल कर मुझे दिया और कहने लगी कि इसे पहन लेना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। भले ही हम गरीब हैं लेकिन इंसानों की मदद करना अपना फ़र्ज समझते हैं। थोड़ी ही देर के बाद खाना खाकर और कपड़े बदल कर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। फिर उस लड़की ने अपना नाम पलवशा बताया और कहने लगी, इस गांव में सबसे गरीब घर हमारा है। वो देखो, दूसरे कमरे में मेरे वालिद साहब पड़े हैं, सालों से बीमार हैं। छोटा भाई मेरा बकरियां चराने पहाड़ी पर गया है। अम्मा बेचारी तो कई साल पहले ही मर गई थी, जब मैं बहुत छोटी थी। ना तो मैंने स्कूल की तालीम हासिल की और ना ही कुरान पाक पढ़ पाई। क्या करती, कम उम्र में ही मेरे कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। फिर उसने मुझे कहा कि तुम तो बहुत अमीर ख़ानदान से होगी, कहाँ पर रहते थे तुम लोग? फिर मैं नज़रें झुकाकर उससे कहने लगी कि मैंने तुमसे एक बात छूट गई थी कि मैं यहाँ घूमने फिरने नहीं आई थी, बल्कि मैं खुद एक लावारिस और बेसहारा लड़की हूँ। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सारी कहानी उसे सुना दी कि किस तरह से चची ने मुझ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर अपने घर से रात को निकाल दिया, लेकिन मैंने जिनज़ादे का जिक्र उसके सामने नहीं किया। मैं सोचने लगी कि अगर मैंने उसे ये सब बता दिया तो वह ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेगी। वो हरगिज़ मेरी बातों पर यकीन ना करते। मैंने उससे कह दिया कि मैं यूं ही रास्ता भटकती भटकती यहाँ तक पहुँच गई थी। फिर वो कहने लगी, परेशान मत हो, अगर तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं तो तुम मेरे साथ इसी घर में रहो। हमने 3 बकरियां पाली हुई हैं, बस उसी से अपना गुजारा करते हैं। हर साल बकरियां बच्चे देती हैं, उनमें से 2-3 बच्चे हम बेच देते हैं और पूरे साल उसी रकम से गुजारा करते हैं। सोचती हूँ कि 4 पैसे जमा कर लूँ ताकि बाबा का इलाज किसी शहर में करवा सकूँ। आखिर यही तो मेरी उम्मीद और सहारा है। वो लड़की वाकई बहुत दुखी थी और हालात से परेशान थी। अब मैंने भी उसकी मदद करने का फ़ैसला किया। मैं उससे कहने लगी कि क्या तुम्हारे गांव में कोई ऐसा काम नहीं है जो हम दोनों मिलकर करें और हमारे हालात बदल जाएं? वो कहने लगी कि मामूली मुआवजे पर यहाँ पर कढ़ाई करने के लिए एक अमीर घर की औरत गांव की औरतों को कपड़े देती है। कभी कभी मैं भी वो कढ़ाई के कपड़े लेकर आ जाती हूँ। शाम होते ही उसका छोटा भाई भी घर आ गया। वो 12 साल का मासूम सा बच्चा था। उसके चेहरे पर थकन और भूख थे। मुझे उस पर बेतहाशा तरस आया। दोनों बहन भाई बहुत खूबसूरत थे, लेकिन गुर्बत ने उनका ये हाल कर दिया था। अब पलवशा ने मुझे अपने घर में ही रख लिया था। मैं रात को सोती तो मुझे उसी जिनज़ादे की याद आती जो मुझे बिन बताए ही ना जाने कहाँ चला गया था। फिर एक दिन मैं रात को सोई तो अचानक ही मुझे अपने पास कोई खड़ा महसूस हुआ। मैंने अपनी आंखें खोली। अंधेरे में चमकती स्याह आंखें, बिलाशुबा वो उसी जिनज़ादे की थी। मैं एकदम से उठे थे। वो जिनज़ादा मेरे करीब आया और कहने लगा, तुम वहाँ से बगैर बताए क्यों भाग कर आ गई? चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया और कहने लगी, मुझे वहाँ खौफ महसूस होता है, मैं उस गेस्ट हाउस में नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पर खुश रह रही हूँ। वो उदासी से कहने लगा कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। तो मैंने उससे कह दिया कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, लेकिन मैं कभी भी उन जिन्नात के साथ नहीं रह सकती। वो बहुत खौफनाक है, मुझे नुकसान पहुंचा देंगे। वो नाराज़ दिखाई देता था।
फिर चंद साने बाद ही वहाँ से वो गायब हो गया। सुबह मैं उठी तो पलवशा मुझे कहने लगी कि तुम रात को किससे बातें कर रहे थे। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि तुम अपने आप में बोल रही थी। उसकी बात सुनकर मैं खौफज़दा हो गई कि कहीं वो ये बात जान ना ले कि मेरे ताल्लुकात एक जिन्नज़ादे के साथ हैं। फिर मैंने उससे बहाना बना दिया कि मुझे नींद में बोलने की आदत है, हो सकता है तुमने मुझे तभी देखा हो। फिर एक दिन पलवशा का छोटा भाई ज़मान बकरियां चराने गया। वो वापस आया तो बहुत बेतहाशा रो रहा था। उसके रोने पर मैं और पलवशा परेशान हो गए। वो कहने लगा, बाजी तीनों बकरियां जंगल की तरफ चली गई हैं। मैं वहाँ नहीं गया, मुझे डर लग रहा था। ऐसे लगता है कहीं जिन्नात ना उन्हें उठा कर ले गए हों। मैं उसकी बात पर हैरान रह गई तो पलवशा कहने लगी, दरअसल जंगल में कई लोगों ने जिन्नात को घूमते फिरते देखा है। लोगों के कई जानवर वो उठा कर ले जाते हैं। मैं हैरान होकर कहने लगी कि भला जानवरों का वो क्या करते होंगे। तो वो कहने लगी कि तुम्हें नहीं पता, जिन्नात जो होते हैं वो गोश्त खाने के बहुत शौकीन होते हैं। फिर वो ज़मान को डांटते हुए कहने लगी, तुम उस तरफ गए ही क्यों थे? देखो तो सही, हमारा तो घर का गुजारा ही उन बकरियों से होता है। अब वो आंसू बहा रहे थे। दिन ब दिन उसके बाप की हालत भी ख़राब होती जा रही थी। उन्होंने मुझे सहारा देकर अपने घर में रखा था। अब मैंने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया। मैं शिद्दत से उस जिन्नज़ादे का इंतज़ार कर रही थी। फिर उस रात जब घर में सन्नाटा हो गया तो मैंने आंखें बंद करके दिल से उस जिन्नज़ादे को याद किया। थोड़ी देर बाद ही वो मेरे सामने खड़ा था। फिर मैं उससे कहने लगी कि तुम्हारे जिन्नात ने उन गरीब लोगों की बकरियां उठाकर अच्छा नहीं किया। मैं उनकी बकरियां हर हाल में उन्हें देना चाहती हूँ। तुम कुछ भी करके वो बकरियां लाकर वापस इस लड़के को दो। जिन्नज़ादा नाराज़गी से कहने लगा कि तुमने 2 साल ज़िंदगी मेरे साथ रहने का वादा किया था, अब मुझे छोड़कर इन लोगों के घर में रहने लगी हो। मैंने उससे कह दिया कि मैंने तुम्हें ये कब कहा कि तुम मुझसे मिलना छोड़ दो या मेरे सामने ना आया करो। तुम यहाँ रह कर भी जब चाहो मेरे पास आ सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं ये चाहती हूँ कि इस घर के हालात अच्छे हो जाएं। क्या तुम इनकी मदद कर सकते हो? वो जिन्नज़ादा कहने लगा कि मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उसी रात उसने मेरे कहने पर वो बकरियाँ अपने कबीले से लाकर पलवशा के घर बांध दे थे। सुबह दोनों बहन भाई उठे तो अपने सहन में बकरियां देखकर खुशी से बेहाल हो गए। उन्हें समझ नहीं आए थे कि ये रात ही रात में कैसे वापस आ गई थी। मैं उनकी खुशियां महसूस कर सकती थी। फिर एक दिन जिन्नज़ादे ने मुझे अपनी कीमती अंगूठी दी और कहने लगा, अगर ये बेच दोगी तो इससे मिलने वाली रकम से इस घर के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं उसका शुक्रिया अदा करने लगी तो वो कहने लगा कि ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है, क्योंकि मुझे तुम्हें देखते ही मोहब्बत हो गई थी। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि ज़िंदगी में कभी भी मुझसे मुंह मोड़ कर नहीं जाओगी। मैंने उससे वादा कर लिया था। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में उसके अलावा कोई भी नहीं था। फिर एक दिन मैं पलवशा से कहने लगी कि मेरे पास एक बहुत कीमती चीज़ है, अगर मैं इसे बेच दूंगी तो तुम्हारे हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। वो मुझे मना करती रह गई। लेकिन फिर दूसरे दिन हम दोनों शहर गए और मैंने वो जिन्नज़ादे की खूबसूरत अंगूठी बेच डाली। उससे मिलने वाली रकम मेरी और पलवशा की सोच से भी ज़्यादा थी। वो बार बार नम आँखों के साथ मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। मैं दिल में सोचती कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब तो उसी जिन्नज़ादे ने किया है। आहिस्ता आहिस्ता पलवशा के घर के हालात बेहतर हो गए। फिर वो अपने बाबा को शहर ले गई। अब उसका इलाज एक अच्छे अस्पताल में हो रहा था। फिर एक दिन जिन्नज़ादा मेरे पास आया और कहने लगा, मैंने शहर में एक बहुत अच्छा घर लिया है, हम वहाँ जाकर अपनी दुनिया बसाते हैं। मैंने अपने कबीले को छोड़ दिया है। मैं उससे कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुमने इस लड़की को बहुत सारा ख़जाना देना होगा ताकि इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर जाए। फिर उस जिन्नज़ादे ने ऐसा ही किया। एक दिन वो इंसानी रूप में मुझे लेने आया। पलवशा उसे देखकर हैरान थी। फिर वो मुझे कहने लगी कि ये कौन है। मैंने उससे कह दिया कि ये मेरा मंगेतर है। कई साल पहले मेरी इससे मंगनी हुई थी, लेकिन ये बहुत दूर चला गया था। अब ये वापस मुझे लेने आया है। वो मुझे खुश रहने की दुआएं देने लगी। वो मुझे कह रही थी कि मेरी वजह से उसके हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। अब वो अपने बाबा का इलाज बहुत अच्छे अस्पताल में करवा रहे थे। अब मैं उस जिन्नज़ादे के साथ एक नई जगह पर आ गई थी।
وہ گھر تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس میں نوکر چاکر بھی گھوم رہے تھے۔ جنزادہ کہنے لگا، یہ سب میں نے تمہاری خدمت کے لیے رکھے ہیں تاکہ تم ساری زندگی عیش سے گزارو۔ پھر ایک دن میں اس گھر کی چھت پر کھڑی ہوئی تو حیرت سے دنگ رہ گئی۔ یہ تو وہی گلی تھی جہاں پر میں چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے دیکھا اس گلی کے سب سے چھوٹے گھر میں چچا اور چچی کی فیملی آباد تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ وہی جگہ تھی۔ گھوم پھر کر ایک بار پھر سے میں اپنے ماضی میں چلی گئی تھی۔ وہ لوگ شاید نہیں جانتے تھے کہ اس خوبصورت بنگلے میں رہنے والی لڑکی وہی ہے جسے انہوں نے رات کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ پھر ایک دن میں حیران رہ گئی جب دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا تو چچی دروازے پر موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ شدید حیرت میں مبتلا تھی تو میں ان سے بگانے لہجے میں کہنے لگی کہ آپ کو کیا کام ہے مجھ سے؟ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ پھر وہ کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ اس بنگلے میں ایک بہت امیر عورت آ کر بسی ہے، اسے کام والی کی ضرورت ہے، اس سے میں کام مانگنے یہاں آئی تھی، لیکن تمہیں یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ دیکھو تو تم کتنی پیاری ہو گئی ہو، لگتا ہے تم نے کسی امیر شخص سے شادی کی ہے۔ پھر میں نے چچی سے صاف کہہ دیا کہ میں اب کسی سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ آپ کو سامنے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا ماضی یاد آتا ہے جس سے میں نے بہت مشکل سے بھلانے کی کوشش کی ہے۔ چچی کے چہرے پر مایوسی تھی، وہ واپس چلی گئی۔ پھر رات ہوتے ہی وہ جنزادہ میرے پاس اس بنگلے میں آ جاتا۔ اب ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے، مجھے دنیا والوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس نے ہر قیمت پر میری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ زندگی میں کئی دھکے کھانے کے بعد آخرکار میں نے اپنے حصے کی خوشیوں کو پا لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔